اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگر ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں، ان تمام افراد نے مل کے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے، انہوں نے ایک رول پلے کیا اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا. یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ. اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے The restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, the respondents is میں RDA, the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of total formalities. تو ہم نے ساری ٹوٹل فارمیلٹیز فلفل کی ہوئی تھی. اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے. سب سے نیچے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو نوٹس فار اے فورس ڈیٹ the parties are directed to maintain status quo meanwhile. یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کا جو ریونیو اسٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں. ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے وہی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے. 121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس سے اگلی سلائیڈ دکھائیں گے ہمارا سب. اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. فاٹا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی، ہم سے انہوں نے پیمنٹ لے لی، ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسیس ہے. لیگلی اس وقت جس وقت فاٹا نے اس کو اپنا کنٹرولڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی. تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اسے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے. اس سارے آپریشن کی بنیاد ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ چونکہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے، تو اس ایریے میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچ ہیں اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے. یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں، انٹیلیجنس بیورو، IG پنجاب، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ، چیف منسٹر پنجاب، سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں. آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں. جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں، وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں، اپنی تمام قبضہ کوٹیاں وزٹ کراتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی اور CTD کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. آپ نے جب بھی چیک کرنا ہو. اس سے اگلا جی یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی
سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے, میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں, ان کے ایک MLA انوالوڈ تھے, 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا. آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے, اور منع بھی انہوں نے کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہے جی, ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے, اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہے, سالوں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RTA رہے, یہ بھی اعلیٰ کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور باسط ڈیون صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے, اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی. یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ نعیم اعجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے. ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں, وہ دیکھیں گے معاملات. نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے. میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف, چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں, اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میسر کی جاتی ہے, باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے, اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا. ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے, یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی. ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے, وہ بہت اور ایمپل ہے. جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ. اور جو ہمارا کیس ہے, ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد, اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی, تمام علاقہ بنجر پڑا ہے, پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے. اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا, اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon. اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے, ہم دونوں مل کے DHA کو رقبہ دیں گے اس ایریا میں, یہ بھی بات طے ہو چکی ہے, علاقہ بھی طے ہو چکا ہے. ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, وہ غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو. میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے, I'm very thankful, آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں, اور باقی سب کا بھی شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے. میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ, اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے, اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1-1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے, یا 2-2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے. کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں. خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس ایک سال میں. اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے, اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے, اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے. میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا, باقی میں نعیم اعجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا. صرف ایک آخری پلی میں حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ عاصم صاحب, پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے, لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں, اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں. اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں, اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسیژن اپنی نصرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. خدا را آپ سپہ سالار ہیں, اللہ اور اللہ
کہ رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں, نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی. جزاک اللہ خیر جی. میں نعیم صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا, باقی معاملات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائیڈ کریں گے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا جو آج ہمیں یہاں پہ لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں. صاحب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں جی یہ پچھلے تقریباً 4-5 دنوں سے یہاں پہ آر ڈی اے والے, ڈسٹرکٹ کونسل والے, راولپنڈی پولیس کمشنر صاحب کی پوری ٹیم, ڈی سی صاحب کی پوری ٹیم, ڈی جی آر ڈی اے صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے, ایک پورا ایک پلان کر کے ایک پوری یونین ان کی تیار ہوئی ہے. اس کو لے کے لمبی چوڑی پولیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیالہ روڈ کے اوپر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صرف پارٹی بنایا بلو ورڈ سٹی کو, وہ جس طرف بھی گئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے ہیں, وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے, جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی, اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کے پاس آر ڈی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے جی یہاں پہ ہمیں جو سی ٹی ڈی نے ایک رپورٹ جنریٹ کی ہے کہ یہاں پہ افغانی آ گئے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. یار آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے, کیا اعلام ہو گیا کہ یہاں پہ افغانی آ رہے ہیں؟ آپ لوگ سوسائٹیز کے اونر سے تو پوچھیں نا. اس کے بعد ان کا یہ سٹوری کریٹ کر کے بیٹھے جی ان لیگل پروجیکٹ. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ سٹی آج راولپنڈی میں آئی ہے, پچھلے لاسٹ ویک میں آئی ہے. بلو ورڈ سٹی کو مارکیٹ میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, مور دین 5 ایئرس. سب سے پہلے ابھی صاحب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر دکھایا ہے. یہاں پہ جو پہلے نے ہمیں پلاننگ پرمیشن ایشو کی گئی ہے وہ 427 کنال کی ہے, وہ کس نے دی ہے؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے. وہ کس طرح پلاننگ پرمیشن کس طرح ایشو ہوتی ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ سٹارٹ جو ہوتی ہے آپ کے محکمہ مال سے. پٹواری صاحب ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں جی سعد نذیر ندیم اجاز, یہ اس بلو ورڈ سٹی کے اندر ایک سوسائٹی لانچ کی, فارم رجسٹر ہوئی ہے. اس رجسٹر کے اندر کون ہے جی؟ سعد نذیر, چودھری ندیم اجاز, اور یہ 427 کنال کی ایک ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں فرد ملکیت وہ سبمٹ ہوگی. پٹواری صاحب نے اپنی رپورٹ جنریٹ کر دی. اس کے بعد آگے چلے گی گرداور صاحب کے پاس, انہوں نے ویریفائی کر دیا جی خسرہ گردابی لگی ہے, ساری چیزیں ہوکی ہیں, واقعی یہی اونر ہے. اس کے بعد چلے گئے این ٹی او صاحب کے پاس. این ٹی او مینس کے نائب تحصیلدار آفیسر, انہوں نے بھی اوکے کر دیا. اس کے بعد چلے گئے جی اے سی صاحب کے پاس, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے فزیکل وہاں پہ جا کے 427 کنال کا وزٹ کیا. وزٹ کر کے یہ دیکھا کہ 427 کنال جو جگہ ہے, یہ میں ڈے فرسٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹاکنگ اباؤٹ 2017. 427 کنال جو ہے وہ کمپلیٹ ٹیکس فیس موقع پہ موجود ہے. اے سی صاحب کا بھی دورہ ہو گیا, کمپلیٹ ہوگی یہ چیزیں. اس کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ فارورڈ کر دی اے ڈی سی آر صاحب کو. اے ڈی سی آر صاحب نے اپنا پورا چیک کر کے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا کے, ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ محکمہ مال کی, جس میں پٹواری, گرداور, تحصیلدار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ساری چیزیں ویریفائی کر دی, اوکے کر دی سارا کچھ. اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی ڈی سی صاحب کے پاس, ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے اوکے کر کے سائن کر کے اپنا محکمہ مال کی جو آپ کی لینڈ کلیئرنس کا ایک نوٹیفیکیشن, جس کو این او سی آپ کہہ سکتے ہیں, نو آبجیکشن لیٹر, وہ فارورڈ کر دی پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں. وہ چلی جاتی ہے آر ڈی اے کے اندر. اب آر ڈی اے کے اندر ان کی اپنی ایک ٹیم ہے. پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹ ہیں, فلڈ ایریگیشن ہے, انوائرمنٹ ہے, واس ہے, ایویشن ہے. ان کے علیحدہ 4 این او سیز ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے سارے لیے. وہ لے کے سارے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹس, میں پروسیس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انلیگل ہے. مجھے بتائیں کیسے انلیگل ہے یہ. اب ذرا اس کو سنیں, ذرا پوری توجہ سے سنیں. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں, میرے پاس پروف بھی ہے, میں سب کچھ پروف کروں گا. میرے پاس ایک ایک فائل موجود ہے, سارے ڈاکومنٹس ہو گئے. ان کی ہوتی ہے ایک 1 منتھ یا 2 منتھ میں ایک میٹنگ, جوائنٹ میٹنگ. اس میں کون بیٹھتا ہے جی؟ اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب, اس میں بیٹھتے ہیں جی کمشنر راولپنڈی صاحب, اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی سی صاحب. یہ سارے بیٹھ کے اس میں 8-10 سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں. کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک سوسائٹی اپرووڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلاننگ پرمیشن, جس کو کہتے ہیں PP1. یونیورسٹی کو 427 کنال کی ایشو ہوگی. اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سبمٹ کر دی 1534 کنال کی. وہ بھی سیم اسی پروسیس سے گزر کے چلے گی, وہ بھی انہوں نے اپروو کر دی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپرووڈ ہوگی, ہم نے یہاں پہ لینڈ پرچیز کی,
मौके पे हमने फिजिकल डेवलपमेंट शुरू कर दिया, इदारे ने हमें रजिस्टर कर लिया ना, हम ऑन बोर्ड हो गए, वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। लंबी चौड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे डेवलपमेंट की, वहाँ पे मेन बुलेवार्ड्स बनी है, पार्क बने हैं, स्कूल बने हैं, स्कूल मौके पे चल रहे हैं, उसके अंदर पब्लिक मनी इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे हमारे साथ ये बहुत सारे हमारे भाई जो डीलर ब्रदर्स यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे इन्वॉल्व हो गए। 5 साल में हम लेके अपने सारे हमारे जो कोड फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी पूरी करके हम आगे सारी चीजें आरडीए के वेबसाइट पे चले जाएं। आज की डेट में भी आप ओपन करके देखें तो हमारा केस आपको नजर आएगा अंडर प्रोसेस, इलीगल नहीं नजर आएगा किधर भी। सारी चीजें करने के बाद फाइनली आज आप अपना LOP जमा करवा दें, ले आउट प्लान हमने वो भी जमा करा दिया सारी चीजों के। फिर इनका अपना एक मैटर चलना शुरू हो गया अर्बन पेरी अर्बन का, जो जी ये मामलात है। फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पिंडी की अपनी एग्जाम स्टार्ट होगी कि ये किसके दूध है किसकी दूध है। उस सारी चीजों को हम लेके इनके रोज के वही ड्रामे वही सारी कहानियां लेके हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कोर्ट में चले गए। हमने वहां पे जाके सबमिट कर दिए कि जनाब ये देखें हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसमें अरबों हमने इन्वेस्ट किए, यहाँ पे डेवलपमेंट कर चुके हैं, लैंड प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं, ये पूरी अवाम अपने साथ जोड़ चुके हैं, सारी चीजें लेके चल रहे हैं। अब इन मोहतरम का आपस में फैसला ही नहीं हो रहा है। एक कह रहा है जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है दूध है, दूसरा कह रहा है जी आरडीए की है, बीच में फाटा भी आ गई है, हमें नहीं समझ आती हम कहाँ जाएं। उन्होंने कहा जी आपने पूरी कोडल फॉर्मेलिटी सारी पूरी की हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की। कहाँ है वो चीजें, हमने सारी चीजें उठाई, उनके साथ नेक्स्टर लगाया, उनको अटैचमेंट करके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जाके वहां पे सबमिट किए। उनको देखने के बाद कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर कर दिया कि आरडीए को, फाटा को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, रावलपिंडी पुलिस को किसी को भी अथॉराइज नहीं है जब तक आपकी हदूद का तयन नहीं होता है, चीजें क्लियरेंस नहीं होती, आपके जो भी लिटिगेशन आप सेटल डाउन जो भी होती है आपका, ये हम इसको स्टे देते हैं, स्टे आपका इंटैक्ट है, आप इसके ऊपर ना इनकी कोई चीज डिमोलिश कर सकते हैं और ना ये कुछ कर सकते हैं। अब वो सारे मैटर मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अगले दिन जनाब मोहतरम ये सारे इदारे इकट्ठे होके आ गए। जब वहां पे मौके पर पहुंचे तो मैं भी पहुंच गया, मेरे साथ मेरी पूरी लीगल टीम थी। मैंने कहा मोहतरम आप लोग किधर आए हैं? यहाँ जी को कुछ अफगानी है, हमें ये मिला है वो। मैंने जनाब मोहतरम ये जितने हमारे यहाँ पे बने हुए हैं ना मौके के ऊपर, जिनको आप डेरे कहते हैं, बेसिकली ये डेरे नहीं है, ये जो हम लैंड परचेज कर रहे हैं आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी मोर देन 200,000 कनाल, 2 लाख प्लस है इसके पास जगह, फिजिकल मौके के ऊपर है, वहां पे डेवलपमेंट भी चल रही है सारा। जो लेबर जिस एरिया में काम करती है, ठेकेदार हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहां पे बहुत सारी टीमें हैं, 15 to 20,000 पीपल इस टाइम आज की डेट में लेबर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ अटैच है, जो साइट पे काम कर रही है। ओटी के भी बंदे हैं, दूसरे आपके मैसन वगैरह भी हैं, कोई आपके कारपेंटर हैं, कोई स्टील फिक्सर हैं, कोई क्यूबमेट के हैं, कोई किसी चीज के, कोई डीजल के हैं, कोई मैसन पे लगे हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप ये देख लें वहां पे उस इलाके के अंदर ये बंजर कदीम है। अरसा दराज से आप देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर बंजर कदीम ही आ रहा है, ये कोई काश की जगह नहीं है। तो इस वजह से कि वो मेरा इलाका है, मैं वहां पे बड़ा हूँ, मेरी पैदाइश वो है, मेरा वो जद्दी इलाका है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। ये तो कोई कमिश्नर साहब लाहौर से आए हुए हैं, कोई फैसलाबाद से हैं, यहाँ पे पिंडी पे आके बैठ गए, इनको ज्यादा पता है कि बंजर कदीम है, ये हमें पता है जो यहाँ पे हमारे आबो अजदाद से ये जगह आ रही है। डॉक्यूमेंट्री आप देख लें, गूगल आप को पीछे जाके आप देख लें, जिस लिहाज से लट्ठे में देख लें नजर आ रहा है वो सारा बंजर कदीम है। जो भी इनकी जो स्टोरीज थी सारी, डायलिसिस सेंटर वहां पे बने हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं, ना किसी को चार्ज नहीं। फ्लाई देखे ना, ये मुल्क हमारा है, हम इसके हैं, ये हमारा ये अवाम हमारी है, हमने इनका सारा नहीं बनना। मुल्क किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमी हमारी तबाह हो गई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग बिजली के बिल तक नहीं जमा करा पा रहे, और ये लोग आते हैं बड़ी आसानी से मशीनें लेके, इनके पास सब कुछ है, इनके पास मशीनों को भी रेंट देने के लिए पैसे हैं, इनके पास 20-20 बंदों का पूरा झंड इकट्ठे करने के भी हुए हैं, इनके पास आपस में डिस्कशन करने का भी टाइम पूरा है, इनके पास पुलिस के भी नफरी 500-500 बंदा है। शहर में चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हर दूसरे दिन गाड़ियां चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी, इनसे पूछे सर्च कर रहे हैं जी, कोई पता नहीं वो किधर गई है। लेकिन किसी भी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी डेवलपर है, जब वो काम करने के लिए निकले उसको गिराने के लिए उनके पास नफरी भी है, उसको इनके पास इंफॉर्मेशन भी है, सारी चीजें हैं। हमारे पास 3 कंपनीज काम कर रही है, डेल्टा, वेलफिशर, बेदार, सिक्योरिटी कंपनी, पिफर कंपनी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। प्रॉपर रजिस्टर्ड उनके गार्ड है हमारे पास, उनकी प्रॉपर एक्सेल में मैंने शीट में उनकी पूरी लिस्ट लीगल टीम से बनवा के, हमें जो 2 थाने हमारे साथ लगते हैं, एक चौंतरा एक चक्री, दोनों थाने में दोनों के डोमेन में हम लोग आते हैं।
लिस्ट है प्रॉपर वहाँ पे थाने में रिसीव करिए जनाब मोहतरम। ये जो बंदे वहाँ पे बैठे हैं गार्ड्स हैं उनकी पूरी एक लिस्ट है और इसकी ये CNIC नंबर है, ये इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है। आप अपने तरीके से जो वेरिफिकेशन करनी है आप वो भी कर लें। वो सारा करके अब पिछले दिनों में 15-20 दिन पहले इन्होंने नादरा से गाड़ी भेजी है, साथ में प्रॉपर पुलिस के बंदे थे। हमारे साइड पे सिक्योरिटी है मेजर ताज साहब, उनकी मुझे कॉल आई कि जनाब ये नादरा की गाड़ी है, कह रहे जी हमने बंदों का बायोमेट्रिक करना है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके जो चार्जेस भी हैं बायोमेट्रिक पुलिस करवा रही है, कमिश्नर साहब करवा रहे हैं, लेकिन आपको पर हेड 300 चार्ज करेंगे। मैंने कहा जी कर दें, आप कम से कम इनकी तो तसल्ली हो जाए ना, आप दे दें, एक तो हमारे पास बायोमेट्रिक रसीद भी आ जाएगी और इनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि बाकी सारी चीजें वो भी हमने करवाई, उसमें से भी इनको कुछ नहीं मिला। सारा कुछ करवाने के बावजूद फिर मुर्गे एक ही ने रद्दा रखा हुआ, आते हैं मशीनें लेके इस तरह गिराते हैं कि जैसे ये इसराइल में गए हुए हैं या ये अफगानिस्तान में गए हुए हैं। यार हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमको बाहर सद नहीं आए ना। आपने जो कुछ किया है, जो करने जा रहे हैं, सिर्फ ये बता दें कि आपने ये जब ऑपरेशन स्टार्ट किया है, 4 बंदे आप जाके बैठे हैं थाना चौंतरा में एक टेंट लगा के, DG RDA, कमिश्नर साहब, DC साहब, आपके उसके अलावा चौथे RPO साहब थे और CPO था, 5 थे। बैठ के आपने आपस में डिस्कशन करके रात को आपने डिसाइड किया अगले दिन सुबह अपनी सारी मशीनरी मूव कर दीजिए, कुछ कैपिटल में घुस जाओ, कुछ अब्दुल्ला में घुस जाओ, कुछ मल्टी में घुस जाओ, कुछ ब्लू वर्ल्ड में घुस जाओ। मतलब जाके आप इस तरह करो कि ये लोग क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जो अवाम 15 से 20 हजार बंदे इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको क्यों रोजगार दे रहे हैं, ये रोडों पे क्यों नहीं निकल रहे, इनको जलील और क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं। मुल्क तो पहले तबाह हो चुका है, जो रह गया उसको हम तबाह क्यों ना करें। हम चारों ने बैठ के मशवरा करके वहां पे भेजा और लोगों को नुकसान। यार मुझे ये बताओ, ये करके आपको क्या मिलना है, आप मुझे ये बताएं। आप लोग अगले दिन स्टेटमेंट ये जारी कर रहे हैं, RDA के मैं देख रहा था डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपकी इसकी वेबसाइट पे ये चढ़ा हुआ है, टोटल जी 284 जो वो स्कीमें हैं पिंडी डिवीजन के अंदर, जिसमें हमने 70 को अप्रूव किया, बाकी हमें बताएं ना, हमें क्यों नहीं आपने अप्रूव नहीं किया। हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। क्या हमारी जमीन से कोरोना निकल रहा है, वहां से कोई ट्यूमर निकल रहा है, या वहां से कोई न्यूक्लियर निकल रहा है, या कोई चीज ऐसी है जो आपको वहां पे अडल खड़े कर रही है आपके लिए। सिर्फ एक बुलंदे एक ड्रामा बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप अगर 4 से 5 बंदे बैठ के ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने इनको जाके डिमोलिश कैसे करना है, आप 4 से 5 बंदे बैठ के तो ये भी तो प्लान कर सकते हैं ना कि हमने इनको लीगलाइज कैसे करना है। आपने कभी हमें पिछले 5 सालों में बुलाया, कभी हमसे आपने पूछा है कि आपके पास अफगानी या फलां, कभी आपसे डिस्कशन किया हमसे, कभी आपने हमसे ये पूछा जनाब हमने आपको इलीगल कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास हर चीज सबमिट की हुई, उनको पता भी है सारा कुछ, लेकिन वो हमें कभी पूछ तो सकते थे ना। क्या ये दायरे इस काम के लिए रह गए हैं, इनकी मर्जी हो जो ये करें, इनकी जो मर्जी हो वो ना करें। यार हम भी इस मुल्क के हैं ना, हमें पूछने का हक बनता है कि नहीं बनता। सारी चीजें हैं, इनका राइट है, हमारा भी राइट है। हम टैक्स नहीं दे रहे, हम जितनी लैंड परचेज कर रहे हैं उसका हम रेवेन्यू डिपार्ट से प्रॉपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूरी पेमेंट जमा करवा रहे हैं हर इंतकाल के साथ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, बल्कि मेरे साथ बैठ जाए अगर इस साल के अंदर या पिछले 5 साल के अंदर जितना ब्लू वर्ल्ड सिटी ने महकमे माल के थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जितना टैक्स जमा करवाया किसी और सोसाइटी ने नहीं कराया। हम तो फीसें जो इनका अपना जो शेड्यूल रेट है उससे ऊपर फीसें जमा करवाते हैं, इस वजह से कि यार जो भी चीजें लीगलाइज लेके चले, किसी चीज को आगे पीछे न चले। जब एक बंदे की हर चीज पूरी है, जब उसके साथ 15 से 20 हजार बंदे जुड़े हुए हैं, जब वो फ्लाई काम कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसकी लैंड कंपैक्ट है, साइड पे 5 साल से वो डेवलपमेंट करके उसने एक चीज कंपैक्ट कर ली है, इतना बड़ा आप उसको कैसे आप सोच सकते हैं उसको जाके नुकसान पहुंचाना। यार खुदा आपने जितने भी इदारे ना, आसम मुनीर साहब, मैंने अगले दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी काजी फैजी साहब से, इस मुल्क को संवारें, इन लोगों को संवारें, इन लोगों के लिए बेहतरी करें। आप इनके लिए बेहतरी करेंगे, अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी करें। जी साहब भाई मेरा सवाल जो कारोबारी लोग हैं वो पाकिस्तान में जो माशियत है और आप लोगों के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ साथ ये भी बता दें कि आपने कोर्ट्स में क्यों नहीं गए, दूसरी बात। और ये भी बताएं कि क्या ये आप समझते हैं कि मीडिया के ऊपर शक मारा जा रहा है
पहले एक असास अखबार के ऊपर इस तरह के मामला हुए हैं, अब आप लोगों के साथ में कहीं ये आप मीडिया के ऊपर हाथ तो नहीं डाल रहे? मैं आपको सर इसका जवाब देता हूँ। पहले तो मैं इस तरफ आप लोगों के साथ क्यों ऐसा हुआ है। जब ये सारे वहाँ पे पहुंचे तो मैं वहाँ पे पहुंच गया, मैं अपनी लीगल टीम के साथ जाके स्टे ऑर्डर लेके चला गया। मैंने जरा मोहतरम आप किधर आए जी, हमने जी ये पोस्ट करानी है। क्यों करानी है जी? हमें जी पीछे से ऑर्डर, किसके ऑर्डर है जी? जमशेद साहब खड़े हैं आरडीएस से जिनके, मैं उनके बाद जरा मोहतरम बताएं कि जी मैं नहीं हूँ जी, यहाँ पे सीओ साहब खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनसे बात कर लें, उनसे बात करें जी मैं भी नहीं हूँ जी। यहाँ पे एसी सदर साहब खड़े, उनसे बात करें, उनसे पूछा गया मैं भी नहीं हूँ जी। एसपी साहब खड़े, उनसे बात करें, उनका जी मैं भी नहीं हूँ। जब चारों से पूछा, बोला जी हमें तो पीछे से ऑर्डर मिला है। पीछे से किसने ऑर्डर दिया जी? अब 12 से ऑर्डर आया है। हमें किसने ऑर्डर किया? 111 ब्रिगेड ने हमें ऑर्डर किया। और मैंने अगले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से की थी लाइव सुनो के ऊपर, मैंने बड़ा क्लियरली ये बताया कि जिनका ये नाम ले रहे थे उनके फरिश्तों को भी नहीं पता, सिर्फ उनके कंधों पे रख के चला रहे। यार मुझे बताएं पाक आर्मी का क्या लेना देना जमीनों से, प्रॉपर्टी से, इन चीजों से? उन्होंने इनको बोला आप जाके ये काम करें। नंबर 1। नंबर 2 आपका सवाल क्या था भाईजान? मैंने पूछा कि हमारा पाक फौज के साथ, तमाम अदारों के साथ, गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप है। हमारे अदारे के साथ जुड़े हुए किसी भी शोबे का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आइडियल रिलेशनशिप है। इसीलिए तो हैरानगी थी कि ये यलगार क्यों की जा रही। ये जिस तरह नईम एजाज साहब ने फरमाया, ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है किसी एजेंडे के तहत। पिछले दौर के बैठे हुए अफसरान, पिछले दौर के लोगों के अंडर द टेबल अकोमोडेशन पे पाक फौज को और अवाम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बदली पैदा कर रहे हैं। ये पिछली पूरी हुकूमत ये काम करती रही और उसका नतीजा आपने 9 मई को देख लिया। ये उनके ही बिठाए हुए अफसरान हैं जो आज तक उन कुर्सियों पे बैठे हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर साहब, इनकी आप हिस्ट्री निकाल लें, इनके एसेट बियॉन्ड बीन्स में इनकी कैलकुलेशन निकालें तो आपको अरबों खरबों की जायदादें मिलेंगी। इनके लाहौर के एक डेवलपर से ताल्लुकात हैं, सिर्फ वो अप्रूव्ड है और बाकी सब इलीगल है इनकी नजर में। और यही स्टोरी आपको रावलपिंडी पुलिस के 1-2 सीनियर अफसरान में मिलेगी। जाती मुरासम है उनके डेवलपर्स के साथ, उनके घर गाड़ियां खड़ी की हैं। मुझे पता है ये गुफ्तगू करने के बाद हमारा क्या असर किया जाएगा, लेकिन रियलिटी है। आप पूछ रहे हैं आर्मी चीफ साहब, ये खुदारा इनको लगाम डालें, ये जानबूझ के अदारों के आगे अवाम को खड़ा कर रहे हैं। अगर ये मामला इस तरह चलता रहा तो किसी दुश्मन को जरूरत नहीं है इस मुल्क पे हमला करने की। हमें हुक्म करें, हम सब कुछ वैसे ही छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, या आपके अदारों के हवाले कर देते हैं या इनके हवाले कर देते हैं। भाई अजीम सिद्दीकी, मेरा कहने का मकसद ये था कि ये माशी इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, इस किस्म का ऑपरेशन क्या हुकूमत के खिलाफ साजिश समझते हैं, मुल्क के खिलाफ? ये सियासी रकाबत है, कारोबारी रकाबत है या कुछ और मासूम सा सवाल इसके साथ और कि अरबों रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट भी, आवाम की इन्वेस्टमेंट भी हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। आवाम को क्या यकीन दिलाते हैं इन्वेस्टर को कि उनका पैसा पहले तो जी आपने मासूम सवाल का जवाब दे दूं और फिर इनके एजेंडे की बात कर लूं। आपके मासूम सवाल का ये जवाब है, जो आवाम के अरबों रुपए की आप बात कर रहे हैं वो जमीन की सूरत में सब महफूज है ना। हमारी तो हमने तो जितनी डिलीवरी देनी है उससे 5 गुना ज्यादा जमीन है हमारे पास, हमने छोड़ के कहाँ जाना है? हमारे तो पिछले 3 साल इन्होंने वो एसेट्स जो मेरे वालिदैन ने मेरे पैदा होने पे मेरे नाम लगाए थे वो भी इन्होंने फ्रीज कर दिए और आज की डेट तक वो फ्रोजन है। हम तो इस मुल्क से ना जाने का सोच सकते हैं, ना गए हैं कहीं और काम कर रहे हैं। सारी जमीन हमारी यहाँ पे मौजूद है। 2-2.5 लाख के नाम कौन छोड़ के जाता है मेरे भाई? और अगर पब्लिक का वो पैसा तो वो तो आज डबल ट्रिपल और 10 गुना हो गया है, वो तो सब कुछ वहां पे मौके पे मौजूद है। और बंजर जमीन के ऊपर हम एक शहर आबाद कर रहे हैं। दुबई सहरा में अगर उसने एक शहर बना दिया और पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट खींच ली, मुझे तो ये समझ नहीं आती रियल एस्टेट से इनको नफरत किया। फिर आपने अगला सवाल किया, देखें 2 बातें हैं जो रियलिटी है वो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए। रियल एस्टेट डेवलपर्स के रूप में काली भेड़ें भी मौजूद हैं, ठीक है, जो पब्लिक का पैसा खा जाते हैं, डिलीवरी नहीं देते। लेकिन आपको अदारा खड़ा करें ना, दुबई के रेरा की तरह का अदारा खड़ा करें जो डिस्टिंग्विश करे कि कौन डिलीवर करने वाला है, किसके पास जमीन है, किसकी इंटेंट क्लियर है, किसकी कैपेबिलिटी है, किसके पास स्टाफ मौजूद है, किसके पास इंजीनियरिंग है, इक्विपमेंट है और वो डिलीवर कर रहा है मौके पे। हमें तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 साल से और हम सिर्फ डिलीवर किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो आपका सवाल था कि एजेंडा क्या है, एजेंडा मेरे भाई मैंने बताया कि चंद अफसरान
पिछली हुकूमत के उन लोगों पे जो भाग गए या जिन्होंने अंडर द टेबल सेटलमेंट की हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं अदारों को आवाम से लड़वाने की, और इसमें बाहर की फोर्सेस शामिल हैं और कोई एजेंडा नहीं है। सर ये थैंक यू साहब, ये बताइए कि इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक सुर्ख फीता, पाकिस्तान के हर शोबे में वो सुर्ख फीता लगा देते हैं ताकि मामला आगे बढ़े ही ना। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का ये मिजाज है। आपने 2-4 लोगों के नाम लिए, कमिश्नर रावलपिंडी का नाम लिया, RDA के लोगों के आपने नाम लिए, जिस तरह आपने कहा कि जुल्फी बुखारी के बाप ने आपसे 4 करोड़ रुपये मांगे, क्या इनमें से भी कुछ लोग आपसे पैसों का मुतालबा कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 सर ये है कि आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, आप मीडिया के ज़रिए बात कर रहे हैं, क्या आप ये मुनासिब नहीं समझते कि आप बराए सब मिल के उनसे रिक्वेस्ट करके बराए रास्त मुलाकात करें ताकि जो पब्लिक मनी इन्वॉल्व है उसकी सेफ्टी हो सके? जी, हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं सबसे मुलाकातों की। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी क्योंकि इन्होंने हंगामी तौर पे एक मिशन शुरू किया हुआ था डेमोलिशन का। इस वजह से हमने कहा हम पब्लिक को तो बताएं ना, जिस वक्त ऑपरेशंस होते हैं पब्लिक अनरेस्ट में चली जाती है, तो सबसे पहले हमने पब्लिक को ये बताने का एहतमाम किया कि हम यहीं पे हैं, सारी जमीन यहीं पे, और हम काम करना चाह रहे हैं। खुदारा इलीगल हमें किस बात पे आप कह रहे हैं? अप्रूवल आप खुद नहीं देते जो आपने फरमाया, और वो आप मेरे से भाई बेहतर जानते हैं महकमों में क्या होता है, मेरा मुंह ना खुलवाएं, सब जानते हैं क्या होता है। तो मैंने मेंशन किया मोहसिन नकवी साहब मोहतरम आदमी हैं, और वो अपने तौर पे, मैंने लाहौर में उनकी प्रोग्रेस देखी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट कुछ हिस्सों में अपने तौर पे ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि अगर तो डेडिकेटेड लोग चंद छोटों पे बैठ जाएं तो काम हो भी सकता है, इसलिए मैं उनके बारे में नेगेटिव गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। उनको भी मिसलीड किया जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि अदारों को और अवाम को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और चंद काली भेड़ें जो ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस डिपार्टमेंट में बैठी हुई हैं या इन अदारों में बैठी हुई हैं, वो ये काम कर रही हैं। आप रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसकी प्रोग्रेस लें ना, कि पिछले 5-7 सालों में आपने कितनी स्कीमें अप्रूव की हैं। हम कह रहे हैं कि 2 लाख केनाल वहाँ जमीन है, तो हमारे पास 500 केनाल भी ऐसी नहीं है जो इनके म्यार पे पूरी उतरती हो, हमें 500 केनाल की अप्रूवल ही दे दें अगर ये देने वाले बने। बाकी जवाब आपको इजाज साहब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुसर्रत एजाज खान है, मैं चेयरमैन हूँ फेडरेशन ऑफ क्रिएटर्स पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के 10 लाख रियल एस्टेट एजेंट हमसे मुंसलिक हैं जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दोस्तों, ब्लू बर्ड सिटी कोई 6 महीने 8 महीने पहले नहीं बना, 5 साल पहले बना था। हमने इब्तदाई NOC देकर पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी खैबर से कराची तक इनके साथ जुड़ी, अपने क्लाइंट ओवरसीज पाकिस्तानीज, और चूंकि यहाँ पर उस वक्त जो प्लाट लिए जा रहे थे वो हज़ारों में लिए जा रहे थे, लिहाजा वो लोग जो इंतहाई मुतवस्सित तबके के लोग थे उन्होंने घर का ख्वाब देखकर उन हज़ारों रुपयों से यहाँ प्लाट खरीदे, और हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए और ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई। सो ब्लू बर्ड सिटी ये नहीं है कि आज से 3 महीने पहले ज़मीन से निकली और आज 3 महीने के अंदर हुकूमत ने एक्शन लिया और आकर यहाँ चढ़ाई कर दी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बड़ा अजीब इस मुल्क का कानून है। आप कानूनी तकाजे पूरे करके कोई काम करना चाहें, आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बना दिया जाता है। आप बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर एक बर्मा टाउन जैसे या फतेह जंग में जो कोई भी शख्स कोई गैर कानूनी जगह बनाता है, 15 फुट की गली, 10 फुट की गली, टेढ़ी गली, अजाब जिंदगी, वहाँ लोग घर भी बना लेते हैं, रहना भी शुरू कर देते हैं। कोई किसी से नहीं पूछता कि यार ये तुमने पहले 100 कनाल में गैर कानूनी बस्ती बनाई, फिर 100। बर्मा टाउन गैर कानूनी तौर पर 50 कनाल से शुरू होकर कई हजार कनाल बिक के लोग पैसे लेकर निकल गए। आज तक किसी ने नहीं पूछा भाई तुमने कोई NOC लिया। इश्यू सिर्फ इतना है, जो शख्स इस मुल्क में कायदे कानून के मुताबिक काम करना चाहता है, जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हर पैसा जो इनके अकाउंट में आता है वो हमारे अकाउंट में चला जाए, चाहे डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करूं, 1 करोड़ 30 लाख घरों की कमी है पाकिस्तान में,
अगर ये प्राइवेट बिल्डर्स ना होते तो यकीन रखें आपको और मुझको रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 लाख रुपए किराए पे 5 मरले का घर ना मिलता। आज भी घर बहुत ज्यादा हैं। शहर से निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर शहर में आबादी बहुत हो जाए तो फासला देकर एक शहर आबाद करें, निजाम ठीक चलेगा। आप ये देखें जो डेवलप एरिया ना सर, उसमें क्या जुल्म है। सीडीए के 300 फुट के बरसाती नाले थे, 50 फुट के रह गए। नालों के ऊपर उन्होंने प्लाट बना दिए, नालों के ऊपर कच्ची बस्तियां बन गई, नालों के ऊपर क्रिश्चियन कॉलोनी बन गई। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर सरकारी इदारे बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करते, प्राइवेट बिल्डर्स को कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन काम तो करते ना। अगर हुकूमत खुद काम आपके लिए मेरे लिए करने को तैयार नहीं और जो डेवलपर काम करने को तैयार है उसको तबाह बर्बादी का शिकार कर रहे हैं, यकीन करें ये किसी तरह भी मुहब्बे वतन मामला तो कतई तौर पर नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि खत्म हो जाए तो आपके सवाल का लंबा सेशन कीजिए, सब दोस्त करें। अच्छा सर इस तरह की आप आगे सवाल देंगे। अच्छा साहब नजीर साहब नहीं जानते, ये बताइएगा कि आज माशाल्लाह जलसे का समाज था यूनिवर्सिटी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा आवाम इकट्ठी हुई थी। आपने बात की कि यहाँ पे कब्जे के हवाले से 2 लाख कनाल आपने ज़मीन तो इकट्ठी कर ली, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एरिया नो गो एरिया बना हुआ था। आए रोज़ कत्ल वारत होती थी। 200 जो मुख्तलिफ जो FIR है कि वो सच्ची हैं झूठी हैं। और दूसरी मुझे ये बताइएगा कि NOC आपको जारी अगर नहीं हुआ तो आवाम को कैसे डिलीवर करेंगे। और तीसरा नहीं भी जात साहब से सवाल है कि क्या आप सियासत में एंट्री हुई है तब यूनिवर्सिटी को नज़र लगी है? एक चीज नहीं, सियासत से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो बताएंगे आपको। सियासत है कि ब्राइट होने जा रही। अच्छा, जो आपका सवाल है ना डिलीवरी कैसे देंगे लीगली अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती, इसका मैं जवाब सबको दे दूं और अपने कस्टमर्स को देना चाहूँगी। एक लीगल पॉइंट है, उसके बाद नहीं मिजाज साहब आपको ये दूसरी बात बताएंगे। आपने कहा कि आपको NOC नहीं मिलता तो डिलीवरी कैसे देंगे। हमारे पास ज़मीन मौजूद है, ठीक है जी। जितने हमारे कस्टमर्स हैं डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हज़ार कनाल एक्टिवली डेवलप कर दी, जिसकी 70-80% मुकम्मल हो चुकी डेवलपमेंट और बाकी 2 लाख कनाल पे काम हो रहा है इस वक्त। हम लोगों को उनकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करा देंगे और सर्विसेज अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जारी रखेंगे। इसको कोई पाकिस्तान का कानून इस अमल को नहीं रोक सकता। कब्जे के हवाले से जो FIR हुई है रोजाना की बुनियाद पे कत्ल गारत होती है, उसमें कोई झूठाई जनाब मोहतरम, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। जो आपने कहा कि ये नो गो एरिया बना हुआ था, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात आज से 2 साल पुरानी, अभी की नहीं है। आप देख सकते हैं मौके के ऊपर जितनी भी हमारी सराउंडिंग में सोसाइटीज थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मर्ज हो चुकी है। और जो मर्ज हुई हैं वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, 10-10, 15-15 हज़ार कनाल थी। असद रात से बैठी थी, हमने चारों तरफ से लैंड ले ली। उनके साथ हमारे छोटे मोटे लिटिगेशन थे, मामला थे, चल रहे थे मामला। वो तो 1-2 साल पुरानी बात थी। कभी की ट्रांसफर भी हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पोजीशन भी ले लिया और वहाँ पे काम चल रहा है। दूसरी जो कब्जों की आप ख्याल कर रहे हैं, एक दिन में 20-20 FIR हुए। आपकी जेब से कारतूस निकल रहा है, किसने दिया जी? नई मिजाज ने दिया, सार नजीर ने दिया। और उसका क्या करे जी? 109 लगा अबैटमेंट मशवरा जिसको कहते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लीगल, मेरा भाई यहाँ पे बैठ रहा, मेजर एक्ट के अंदर वो कानून ही कोई नहीं है। जब आपको एक कोई चीज जो उसमें पहले होता था 13-20 आजकल वो 41B और समथिंग इस तरह का है, उस वक्त 109 है ही नहीं। ये लगा लगे वो पर्चे कब के खत्म हो गए हैं और फुट गए। जैसे जिस तरह के पर्चे थे वही स्टेटस था। किसी को रोकना हो तो इनके पास आखिरी अरबा यही होता है कि हम लोग FIR देकर रोक लें। इस तरह का कोई मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें क्लियर है। वो साथ भाई ने बड़ी क्लियर बता दी है बात कि जो कह रहे हैं ना NOC, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास इतनी ज़मीन है कि आराम से कोई बगैर किसी टेंशन के, जितने हमारे क्लाइंट है, भाई भी एक सवाल करना चाह रहे थे क्या आपने किया, उसका जवाब बीच में ही दे रहा, कवर्ड हो जाएगा। जितने हमारे क्लाइंट है ज़मीन के चौथे हिस्से के ऊपर अगर हम उनको सिर्फ रजिस्ट्रियाँ इंतकाल करवा के पोजीशन दे के घर बनवा दें, ना वो किसी कानून में ना हमें कोई रोक सकता है, वो हमारे पास आखिरी राइट है। जितने इन्वेस्टमेंट है उनकी सारी चीज़ें वो तो हमने ऑलरेडी मेन बोले हज़ारों कनाल के ऊपर 10
10-15 किलोमीटर हमारी मेन बुलेवार्ड बन चुकी है, उसकी सराउंडिंग में ब्लॉक बना दिए, में क्या इशू है? भाईजान 6 साल में कोई मैं जवाब देता हूँ, मोहतरम आप जरा मेरे से मुतवज्जो हो आप, हमने कोई लाखों फाइलें नहीं सेल की, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैंने बड़े क्लियरली जवाब दिया है, जो मौजूदा जमीन है उसका चौथा हिस्सा भी अभी तक हमने नहीं दिया, बस बड़ा क्लियर जवाब है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्लियरेंस चाहिए, आप मेरे साइट पे आ जाए, आपको फिजिकल विजिट भी करा दूंगा, डिटेल में आपको उसकी डिटेल भी एक मिनट की एम्बिग्विटी क्लियर कर दूं कि हम कस्टमर रजिस्टर करते हैं, सेल रजिस्टर नहीं करते, ठीक है? तो जितनी आवाम का पैसा हमारी तरफ है वो अमानत है, वो नईम एजाज साहब ने बता दिया। अगर हमें वो अदारों से अप्रूवल्स के बाद वो अपनी कमिटमेंट सेटिस्फाई करनी है तो वो जमीन के चौथे हिस्से में हो जाए। सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे बताएं कि लीगल पोजीशन आपकी मुकम्मल है, तो तमाम तरह आपने जिस तरह बताया, लास्ट क्या होगा आपका अगर वो जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है, इसके बाद क्या करेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरे भाई आपका नाम क्या है? खुरम हाशमी अब तक से। अच्छा, खुरम हाशमी अब तक से हैं। आप मुझे बताएं कि जो अदारे हैं इस वक्त मुल्क में वो अदलिया का एहतराम करते हैं? वो आप पोजीशन सर जी अदलिया ने हमें अलाउ किया। सर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने 10 लाख फाइलें जो है नहीं भाईजान, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। आप करें भाई 10 लाख कितनी कभी तो होगी रोशनी, कभी तो होगी रोशनी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, है हमारा नजीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ब्लू वर्ल्ड कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हक हमारा, एनओसी ब्लू वर्ल्ड सिटी जिंदाबाद, ब्लू वर्ल्ड सिटी जिंदाबाद,